Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to share most common questions for cabin crew interview. तो मेरे पास questions है based on tenses. First is present tense, second past tense, and third is future tense. And there is one thing you should know about it कि रिक्रूटर को कोई इंटरेस्ट नहीं आपकी लाइफ के बारे में जानने का. फॉर एग्जाम्पल दे आस्क अबाउट योर डेली रूटीन और योर father and mother career or their daily routine. Recruiter don't have any interest in that thing. Basically they want to check your grammar and consistency of tenses. So I divided the questions based on tenses. So prepare all these questions for your next cabin crew interview. आई नो कि सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बट येस देर इज मोर चांसेस कि आप इनको प्रैक्टिस करके फंबल नहीं होगे. ठीक है, क्योंकि आप ये जो क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे. एंड फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, you know how to answer that, you know how to be very consistent towards your tenses, right? So prepare those questions, it will help you. We will start from the present tense first. In this video, I'm going to share 30 questions on total, 10 on each sentences. Okay, so the first tense is present tense. The questions are, first tell me about yourself. Please don't add about your parents' career or their name or something, because in this question you should add about yourself, like your name, your करियर इन द सेंस कि आपकी डिग्री कौन सी है, आपने कौन से स्कूल से किया है, कितने परसेंटेज आए. इफ़ यू हैव गुड परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल I scored 95% in my 12th standard, so I mentioned that because it was my qualification, right? Any certificate which you are proud of and any moment which you really admire. For example, my answer was, good morning everyone, my name is Vidisha Kumawat, I am from Mandsaur, Madhya Pradesh. I am 19 years old. I completed my higher secondary education with 95%. I am passionate about becoming a cabin crew as I enjoy interacting with people and working in a team. If I talk about my hobbies, I love doing crochet, cooking, and dancing. This is a little about me. Thank you for asking. This is an example of how you can deliver your answer of this particular question. Second question is, what is your strength? So please try to add something which can be connected towards cabin crew के role के कैबिन क्रू का रोल और आपकी स्ट्रेंथ थोड़ा कनेक्शन बैठा है. फॉर एग्जाम्पल आई मेंशन दैट माई स्ट्रेंथ इज दैट आई हैव अ लीडरशिप क्वालिटी and I forgot what I mentioned in my interview, but yes, something related to cabin crew. For example, आप ऐड कर सकते हो leadership qualities and you have quick decision making ideas and something like that. So please be mindful while speaking that particular answer, because the recruiter is also noticing how you deliver your answer and what is your particular word for your strengths. Second, who inspires you? These are very basic questions which are asked by a recruiter, but try to add something unique. थोड़ा सा हटके करिए. जैसे for example, Nirja. If you saw Nirja movie, she was also a cabin crew and she saved a lot of lives, and most of the people mention about her that she is my inspiration. But I truly believe that you say this just for the sake of saying, so please don't do that. Try to find a unique way to deliver this answer. For example, I said that my mother inspires me the most. I know it is also a very basic answer, but मैंने उनके struggle बताया life में, that she is an independent person. She works 3 times in a day. She also does a part-time job as well as she owns a business as well, two business as well, and she managed it really well. And because of her, I learned to handle every situation calmly and effectively, and I manage all my tasks efficiently as well because of her. तो ऐसे करके मैंने connect कर दिया. तो I have a live example at my house, right? तो आप भी ऐसा कुछ live example आपके आंसर में mention करो ताकि वो impress हो सके. Like in my PhD exam, the recruiter was impressed by that answer.
and she asked me the same question, by the way. Next is, what are your hobbies? हॉबीज के लिए कोई एक पर्टिकुलर थिंग नहीं कि आप यही बोलो, आपकी जो हॉबीज हो प्लीज उसको ही मेंशन करना, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चंस बहुत सारे करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई मेंशन माय हॉबीज आर डांसिंग, कुकिंग एंड सिंगिंग, तो वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि डांसिंग में कौन सा पर्टिकुलर डांस, when you have learned it, and how it helped you in your daily life. Yes, this is what a recruiter asked me in my one of my interviews. So please be mindful, जो भी आप आंसर बोल रहे हो, आप अगर उसका क्रॉस क्वेश्चन आए तो आप उसको डिलीवर करने में इफेक्टिव हो, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं. देयर इज नो ऑप्शन कि आप इससे बच सकते हो, क्योंकि अगर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया और आपको नहीं आया, देन आपका सिलेक्शन का चांसेस कम हो सकता है, क्योंकि रिक्रूटर आपकी नर्वसनेस चेहरे पर देख लेते. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, अचानक से कोई क्रॉस क्वेश्चन आ जाता था और मुझे आंसर नहीं आता था, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू बी परफेक्ट वाइल डिलीवरिंग माई आंसर. मुझे नहीं पसंद था कि मैं फंबल करूँ या फिर अटकूँ, जैसे वो होता है ना ऐसा करके, वो मुझे नहीं पसंद था लाइक इन माई इंटरव्यूज. तो मैं वही प्रिपेयर करती थी जिसका आंसर मुझे आता था. तो मैं हमेशा बोलती थी कि आई लव कुकिंग. तो अगर उसमें उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ लिया कि कुकिंग में आप पर्टिकुलरली क्या प्रिफर करती हो, तो मैं बता देती थी कि फ्रेंच फ्राइज. इट इज़ अ वेरी इजी रेसिपी, और उसकी रेसिपी मुझे आती थी, तो मैं वही बता देती थी. और इसके अलावा भी कुछ पूछ लेते थे तो या आई नो कुकिंग, तो मैं उसको बिना हिचकिचाए बोल सकती हूँ, राइट? तो आप वही बोलो जो आपको आता हो, प्लीज डोंट फेक इट. Fifth is, do you like to watch TV serials? Sixth is, what qualities do you have to become a cabin crew member? This is very important questions. Please, before going to your interview, please research about the qualities of a cabin crew. For example, they have quick decision making ability. They are very fast learner as well. They have to learn everything very fast. They have a leadership quality, and they manage their daily life or sleep schedule very well, because we don't get a time to sleep as well because of the flight and jet lags and all. So please know about the qualities of becoming a cabin crew member. And you can also mention discipline. Discipline is also a quality of a cabin crew, as well as punctuality. So please be mindful while speaking the answer of this question. 7 is, who is the busiest person in your family? Let me share my incident. मुझसे ये recruiter ने पूछा था, and the recruiter was very impressed because of this answer. I told her that I am the busiest person in my family, because I wake up early in the morning. I help my mother with household chores. Later, I practice some common questions daily in the morning, which help me to perfect become a best version of myself. And in the evening, I prefer to practice with ChatGPT. That helps me to improve my fluency in English. And in the evening, I again help my mother with household chores. Later, I go to park to walk, because I love to be fit, and this is how I spend my day. And I believe that I don't take rest in between. I prefer to be busy all the time, because this is what I truly love to do. And she was impressed कि मैंने किसी और की तारीफ नहीं की. I only shared my positive sides to the recruiter. Okay. मैंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर अचानक से. तो आई एम सॉरी अबाउट इट कि मैंने कुछ मिस्टेक्स करी हो. बट येस, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने क्या आंसर दिया और मैं क्या दे सकती थी, या मैं क्या चीज़ आपको शेयर करना चाहती हूँ. सो दिस वॉज आंसर, एंड इट वॉज वेरी इंप्रेसिव आंसर, बाय द वे. मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा, मैं शॉक की, वाह मैंने क्या बोल दिया. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू मेंबर? मेरे पास स्पेसिफिक आंसर था इसका कि आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू मेंबर जस्ट बिकॉज व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड आई गॉट टू नो अबाउट दिस जॉब इंडस्ट्री, एंड I was really impressed with it. I researched about the airline industry, and I got to know aviation industry, and I got to know that it is not about glamours, it is also about responsibility. And
the moment I saw the profession of a cabin crew member, I started dreaming of to become the one. And since then, I started to prepare myself for the cabin crew interview. I improved my communication skills, English, and I also worked on my grooming because it is also one of the important part to become a cabin crew member. And that is the reason I want to become a cabin crew member. Thank you. सो दिस वॉज आंसर. मुझे प्रॉपर याद नहीं है बट मुझे जितना याद है मैं बस बोलती गई. सो येस, दिस वॉज माई आंसर एंड इट इज ट्रू. मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी, आई डिसाइडेड टू बिकम अ कैबिन क्रू मेंबर जस्ट बिकॉज आई सॉ कि एक रील मेरे सामने आ गई थी एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि वाओ, कैबिन क्रू की लाइफ कितनी अच्छी होती है. देन आई रिसर्च अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई गॉट टू नो दैट कि ये इजी जॉब नहीं है, बट स्टिल आई वांटेड टू डू. मुझे ट्रैवल करना था, बट आप नहीं बोल सकते कि मुझे ट्रैवल करना है. प्लीज डोंट डू दिस. ये नहीं बोलना है कि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे पैसा कमाना है. दे नो कि उसमें ट्रैवलिंग एक पर्क है, बट beside that, what you actually know about a cabin crew member, you have to handle difficult situation while being calm. So you have to say this कि मुझे पता है responsibilities and glamour as well, but still I choose to become the one, right? So confidence से बोलो. Next, last one in the present tense is, why do you want to work with Indigo Airlines? So basically, I have all questions based on Indigo Airlines. I will also make questions for Akasa Airline because Akasa में different types of question पूछते हैं, Indigo में different. ये GD राउंड में भी पूछे जा सकते हैं और यही पूछे जाते हैं मोस्टली इंडिगो में, बट मैं अकासा के लिए डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी फॉर श्योर. बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेक श्योर कि आप इंडिगो एयरलाइन के बारे में बहुत अच्छा बोले, जैसे कि इट इज़ अ लीडिंग एंड लार्जेस्ट एयरलाइन, दैन it is very affordable airline, very punctual, and people are very impressed with this particular thing कि वो एकदम टाइम पे होते हैं. Okay, and it is also known for the best place to work. Yes, they got the certificate as well. Indigo Airline got the certificate. So this is the answer of it. Okay, now let's move forward. Present tense के मेरे पास total 138 questions हैं and I only shared 10. Interesting. Now past tense. Okay, let's move forward. Past tense. First is, what happened in your last interview? उनको कोई मतलब नहीं कि आप क्यों रिजेक्ट हुए थे. तुम रिजेक्ट हुए थे तो दे नो कि किसी न किसी के कारण की वजह से होंगे, बट शो कि आपका रिजेक्शन होने के बावजूद आपने क्या लर्न किया उस पे. एंड प्लीज बी माइंडफुल कि आपको पास्ट टेंस में ही कंटिन्यू करना है. प्लीज डोंट स्विच टू प्रेजेंट टेंस एट ऑल. सो इसके लिए आप चैट जीपीटी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप चैट जीपीटी को बोलो कि सिर्फ मेक श्योर आई एम स्पीकिंग इन अ पास्ट टेंस एंड दिस इज द क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ इट. एंड अगर आप कोई मिस्टेक करती हो, रिपीट इट वंस अगेन, ताकि आपको माइंड में बैठ जाए कि नहीं, पास्ट टेंस में बोलना है मतलब पास्ट टेंस में बोलना है. एंड दैट रियली हेल्प मी. जब भी मैं पास्ट टेंस के बारे में बात करती हूँ, नाउ आई डोंट स्विच टू प्रेजेंट टेंस अचानक से, ठीक है. तो मैं पास्ट टेंस में ही बोले जाती हूँ. दैट दिस हेल्प मी टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद माई टेंस. सो इसमें लास्ट इंटरव्यू में कैसे रिजेक्ट हुए या क्या क्या चीज़ हुई, तो आपको बताना है कि ये हुआ था. मैं लास्ट राउंड तक गई थी एंड मेरा रिजेक्शन हो गया, बट व्हाट आई हैव लर्नड इज टू बी वेरी काम बिकॉज आई थिंक दैट टाइम आई वॉज वेरी नर्वस. एंड ऐसे करके आप बोल सकते हो, ठीक है. शो दैट यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम योर लास्ट इंटरव्यू. सेकेंड क्वेश्चन इज, हैव यू वर्कड एनीवेयर बिफोर? दिस इज एन ऑप्शनल क्वेश्चन. लाइक अगर पूछे तो और अगर आपने काम किया है तो आप बोल सकते हैं कि येस, एंड फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करना स्टार्ट कर जाएंगे. फॉर एग्जांपल इफ आई सेड येस आई हैव वर्कड एज अ रिसेप्शनिस्ट, सो वो बोलेंगे कि क्या वर्क था, कैसे किया आपने, क्या चीज़ें, और शायद पूछ ले कि व्हाट वाज द डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैंडल दैट टाइम, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए आप सोच समझ के आंसर दें, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, वो हमेशा करते हैं. थर्ड इज, व्हाट डिड यू लर्न देयर? सी, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द क्रॉस क्वेश्चन. तुमने वहां पे क्या सीखा? अगर तुमने यस बोला है तो प्लीज बी माइंडफुल. फोर्थ इज, लास्ट टाइम यू वेंट समवेयर विद योर फादर. इसमें आपको इसमें ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप पास्ट टेंस में अच्छे हो या नहीं हो. दैट्स इट. फिफ्थ इज, व्हाट डिड यू डू yesterday? This is also an important question. Sixth is, describe a memorable day with friends or family. Seventh is, why did you choose this degree? अगर वो डिग्री के बारे में पूछे, आपने बोल दिया बीकॉम, तो क्यों चूज किया, राइट.
Eighth is why did you leave your last job? Ninth is what was the last sport you played? And 10th is what was your work experience? Let me share one incident जो मेरे साथ हुआ था. The HR asked me, what did you do yesterday? And I prepared the answer very well. I spoke it, but you know, I still got rejected. The reason was the recruiter asked me the question and I was just answering. Recruiter मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था. She was on her phone. ठीक है. And I was like, क्यों नहीं देख रही है मुझे? मैं आंसर दे रही हूँ. She should, देखना तो चाहिए, बट इट्स हर स्ट्रैटेजी कि वो फोन में बिजी रहेगी और आपको नर्वस कर देगी एंड देन आप नर्वस हो भी जाओगे. दिस हैपन टू मी. शी वॉज आस्किंग क्वेश्चंस एंड आई वॉज आंसरिंग, बट वो मुझे नहीं देख रही थी, तो आई वॉज गेटिंग नर्वस की, और मैं इधर उधर देखने लग जाती थी बोलते बोलते. तो वो थोड़ा सा एक चीज़ होती है कि वो फ़ोन में देख के भी आपको नोटिस कर रहे हैं. प्लीज़ बी माइंडफुल अबाउट इट. ठीक है. तो ये हो सकता है और बहुत लोगों के साथ हुआ भी है. So, तो मैंने ऑल 10 क्वेश्चन बता दिए पास्ट टेंस में. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फ्यूचर टेंस और हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस. सो फ्यूचर टेंस के मेरे पास ज़्यादा नहीं है, पर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं तो मैं बता देती हूँ वो भी. ओके, सो फ्यूचर टेंस में व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. ये प्रेजेंट टेंस का भी था, तो मेरे पास जो लिखा हुआ है मैं बस वो बोल रही हूँ. सेकेंड इज इन विच कंट्री वुड यू टेक योर मदर आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड. ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है. व्हाट इज योर प्लान बी. ठीक है, तो ट्राई, ये जो क्वेश्चन है प्लान बी का, ट्राई टू आंसर कि आप चाहते तो कैबिन क्रू बनना ही हो बट स्टिल नहीं हुआ तो मैं एविएशन इंडस्ट्री की तरफ ही रहूंगी, क्योंकि मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर आप बोल देते हो कि मैं प्लान बी इज टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, तो बोलेंगे तो तुम कैबिन क्रू में आई क्यों रहे हो, राइट. तो आपको शो करना है कि हाउ वेल यू आर पैशनेट फॉर दिस इंडस्ट्री. नाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस. फर्स्ट, आपको हिंदी आती है, आपने हिंदी कहाँ से सीखी. सेकंड, जीडी टॉपिक है. इंट्रोडक्शन या क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं वो सीवी से, तो प्रिपेयर योर सीवी वेरी वेल. थर्ड इज फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लर्निंग इंग्लिश. तो मैं तो बचपन से ही लर्न कर रही थी, लाइक लर्न नहीं कर रही थी, इट वाज लाइक कि हमारे स्कूल में इंग्लिश बहुत कंपलसरी था, तो इट वाज गुड फॉर मी एक्चुअली. फोर्थ इज आपने हिंदी कहाँ से सीखी, सेम रिपीट हो गया है. हाँ, फिफ्थ इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इंट्रोडक्शन एंड वन थिंग नॉट मेंशन इन योर सीवी. तो आप बोल सकते हो कि द वन थिंग विच इज नॉट मेंशन इन माई सीवी इज माई हार्ड वर्क, because I want to become a cabin crew member and I believe that my hard work is not mentioned in this CV. I have traveled a lot for my interviews. I have invested a lot of um, hard work in, and it still I did not get selected. Still I believe that I have a lot of hopes, and I'm not going to give up. And ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं. मेरे पास पूरा प्लान आंसर नहीं है इसके लिए, बट यस, अगर पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हो, ये बहुत अच्छा आइकॉनिक आंसर हो सकता है. ठीक है, मैं तो इम्प्रेस हो जाती कि वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आप बहुत सारी इंसिडेंट में बता सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉडकास्ट किया था विद अ पुलिस ऑफिसर. ठीक है, हाँ, तो डीसीपी थे वो, उनके साथ किया था, तो इट वाज वेरी गुड इंसिडेंट. ठीक है, कि मैं बता सकती हूँ कि यस दिस वाज एन अचीवमेंट फॉर मी, फॉर माई होल लाइफ, कि कोई भी नहीं करा है ये चीज़, किसी मेरे मतलब किसी ने भी मेरे घर में पॉडकास्ट तो नहीं करा, एंड आई वाज द वन. तो आई वाज वेरी हैप्पी कि वाह आई डिड पॉडकास्ट. सो या, तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें बता सकते हो जिस पे आप प्राउड हो. अगर नहीं हो तो तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि हाँ मैंने हार्ड वर्क किया है, आई एम रियली पैशनेट फॉर दिस करियर. ले दे के आपको बताना है कि आप कितने ज़्यादा पैशनेट हो कैबिन क्रू बनने के. आपको अपना पैशन बताना है कि यस आई एम द वन. ठीक है. 7 is tell me your name. Tell me your name, or it can be, can you please give me your name definition or something, या मीनिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विदिशा, सो इसका मीनिंग है इंटेलिजेंस. तो मैंने बताया, एंड आई ऑल्सो शेयर्ड दैट yes I believe that the meaning of my name is truly applicable in my life, as I am an intelligent person. I scored 95% in my 12th board,
एंड लाइक दिस, तो बोल सकते हो आप ऐसा कुछ भी जैसे मैंने बताया. Now, eighth is, if you get a chance to visit a place, where would you like to go? Ninth is, where are you from? 10th, have you tried any Korean food? ठीक है, ये बेसिकली क्रॉस क्वेश्चन था, हैव यू ट्राइड एनी कोरियन फूड. क्योंकि अगर आपने बोला कि आई लव टू वॉच के ड्रामास और समथिंग, तो वो पूछ सकते हैं कि आपको क्या पसंद है खाने पीने में, राइट? सो दिस इज द वीडियो. 20 मिनट का हो चुका है. आई एम सॉरी आई टेक योर a lot of time, but I think these questions will help you to form your own answer. And all the best for your interview and prepare well. And जो मैंने चीज़ें बोली है mindful करके, please be mindful about all these things. Recruiter really don't want to know about your life, और उनको याद भी नहीं रहेगा आपका नाम आपका इंटरव्यू लेने के बाद. अगर आप सिलेक्ट भी हो गए तो भी उनको याद नहीं रहेगा कि ओ विदिशा सिलेक्ट हुई थी, मैंने विदिशा को सिलेक्ट किया था. नो, they only want to know that how much potential do you have to become a cabin crew member. And you know, a cabin crew member must have good English and communication skills. Communication skills is not just about speaking, it is also about learning and understanding the message. Okay, so it is also about how you express your answer. For example, मैं smile कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, right? तो ये एक अच्छा कनेक्शन बनाता है कि वाह, she is smiling, she doesn't have an attitude, right? This, so please be mindful about it. I'm sorry. Okay, so thank you for watching. Thank you to be a part of this video, and please subscribe my channel, like this video, and comment any queries if you have, and please appreciate my efforts because I made this video just for you. And I promise I'm going to make a lot of videos regarding aviation industry and help you to clear your interview. And I'm also thinking to make episode series on shorts जिसमें मैं आपको मेरी cabin crew जर्नी बताऊंगी since 9th क्लास से. ठीक है, फ्रॉम 9th क्लास से अभी तक की जर्नी, क्या क्या मैंने मिस्टेक्स करी, कितने इंटरव्यू दिए, हर एक इंटरव्यू में क्या इंसिडेंट हुआ है, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उन चीज़ों में. ठीक है, तो इफ़ यू रियली लाइक कि येस दिस इज द कंटेंट विच यू लाइक to watch, so please comment down. I would love to make a video on that particular topic. Thank you for watching. Bye bye.